हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के हैंड रिटन नोट्स हैं ऑन द पोएम दैट टाइम ऑफ ईयर थो मिस्ट इन मी बिहोल्ड, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस पोएम इज सोनेट नंबर 73 written by William Shakespeare. It is addressed to the poet's friend and patron. In this poem, the poet thinks about old age, the passing of time, and death. He feels sad because he knows that his life is coming to an end. Through beautiful images from nature, he compares himself to a tree in autumn, the evening light, and a dying fire. These images show that youth does not last forever. ये पोइम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 73 की है। ये पोइम उनके एक क्लोज फ्रेंड और पैट्रन के लिए लिखी गई है। इस पोइम में पोइट अपनी ओल्ड एज और आने वाली डेथ के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है। नेचर के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के थ्रू पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करता है। The poet first compares himself to a tree in late autumn. Most of its leaves have fallen, and only a few yellow leaves remain on its branches. Cold winds shake the branches, and birds no longer sing there. This picture shows that the poet has become old and weak. His happy and active days are almost over. सबसे पहले पोएट अपना कंपैरिजन ऑटनम मतलब पतझड़ के एक ट्री से करता है। उस ट्री पर सिर्फ कुछ येलो लीव्स बची होती हैं और ठंडी हवा उन्हें हिला रही होती है। पंछी बर्ड्स भी वहाँ नहीं आते। इस इमेज से पोएट बताता है कि अब वो ओल्ड और वीक हो चुका है। उसकी जवानी और खुशी के दिन लगभग ख़त्म हो गए हैं। Next, the poet compares his life to the evening sky after sunset. The bright daylight slowly changes into darkness. This twilight represents the last stage of his life before death. Just as night follows the day, death follows old age. The poet feels that his life is slowly moving towards its end. उसके बाद पोइट अपनी लाइफ को सनसेट के बाद वाली ट्वीलाइट मतलब कि शाम से कंपेयर करता है। जैसे धीरे धीरे दिन की रोशनी ख़त्म होकर रात में बदल जाती है, वैसे ही उसकी लाइफ भी धीरे धीरे डेथ की तरफ जा रही है। ट्वीलाइट ओल्ड एज का सिंबल है और नाइट डेथ का। The poet then compares himself to a fire that is slowly burning out. Only a few glowing embers remain. The fire that once burned brightly is losing its heat and strength. In the same way, the poet feels that his youth, energy, and life are slowly compared to an end. फिर पोएट अपना कंपैरिजन एक बुझती हुई आग से करता है। पहले आग बहुत तेज़ जलती है, लेकिन अब सिर्फ थोड़े से एम्बर्स बचे हैं। इसी तरह पोएट को लगता है कि उसकी जवानी, स्ट्रेंथ और एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और उसकी लाइफ अपने एंड के पास है। Although the poem is full of sadness, it also gives a message of love. The poet believes that when his friend realizes he will not live for long, his friend will love him even more. The poem teaches us that life is short, so we should value our loved ones and spend our time with them. पोइम थोड़ी सैड ज़रूर है, लेकिन इसमें एक प्यारा सा मैसेज भी है। पोएट मानता है कि जब उसका फ्रेंड समझेगा कि पोएट ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो वो उसे और भी ज़्यादा प्यार करेगा। इसीलिए पोइम हमें सिखाती है कि लाइफ बहुत छोटी है, इसीलिए हमें अपने लव्ड वंस की वैल्यू करनी चाहिए। The tone of the poem is thoughtful, serious, and melancholic. Shakespeare uses simple but powerful images from nature to express the truth that everyone grows old and must die one day. His style is rich, emotional, and full of beautiful comparison. इस poem का टोन thoughtful, serious और melancholic है। melancholic का मतलब है उदास। शेक्सपियर ने नेचर की ब्यूटीफुल इमेजेस का यूज़ करके ओल्ड एज, डेथ और लाइफ की रियलिटी को बहुत इमोशनल तरीके से दिखाया है। उनकी लैंग्वेज सिंपल है, लेकिन मीनिंग बहुत डीप है। In conclusion, that time of year thou mist in me behold is a touching poem about old age, death, and love.
It reminds us that life is temporary, but true love becomes stronger when we realize that time is limited. It encourages us to love and value the people around us before it is too late. ये पोइम हमें बताती है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। हर इंसान को एक ना एक दिन ओल्ड होना और दुनिया से जाना होता है। इसीलिए जब तक लाइफ है हमें अपने दोस्तों और फैमिली से प्यार करना चाहिए और उनके साथ हर पल को एंजॉय करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनकी वैल्यू करनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है हम उसको दोबारा मिल नहीं सकते, उसको दोबारा देख नहीं सकते। हर एक इंसान यहाँ पे टेम्पररी है। अगर वो इस दुनिया में आया है तो किसी ना किसी दिन उसको यहाँ से जाना भी है। इसीलिए हमें सबके साथ मिलजुल कर खुश रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दीज नोट्स आर हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।